So good morning, everyone. And yeah, I'm sorry. So good morning, everyone, and welcome back to Data Structures Lab session. So, guys, as you all know, that we have converted this 2-hour session to the lab session now. Okay, and we want to cover the last part that's remaining from searching and sorting unit, which is quick sort, right? So we want to go through this quick sort method today. We will go with example first, and we will understand how quick sort works, and then with the understanding of that entire process, we will also try to write the pseudocode. And once we are done with this understanding part, you will have your time to write your program. Quick sort is the program number 12 from your practical list. And in a lecture session, we have already also seen binary search process and a pseudocode. So that's the program number 15. So our target for today is to complete these two programs, quick sort and a binary search. And that will complete your entire practical list. Around 12 practicals we will be able to complete, right? So let's go through this last sorting technique and complete our entire syllabus here. So the quick sort, as you all know, that we have started with bubble sort, then selection sort, and then insertion sort, and those three were having time complexity order of n square, worst case time complexity order of n square. After that, we looked at merge sort method. Now merge sort works on a divide and conquer technique, and it is having worst case time complexity to be order of n log n. And now this is the fifth sorting technique we are going to see here, quick sort. Now this also works based on a divide and conquer technique. So we are going to divide our array and then conquer it. Similar to merge sort, we are going to divide our array into half part, and then we will merge it. So generally we say it will be divided in a half part, but this division actually depends on the pivot value. We will see in a while what pivot is. So in generalized form, we say we are going to divide this in a half part, and that's why this quick sort will also be having time complexity to be order of n log n height and n comparisons on every level. So n log n will be the time complexity for quick sort also. Now that's the average case. Okay, average case time complexity will be order of n log n. Now, as I said, this half part depends on the pivot value. So which value we select as a pivot, depending on that, time complexity may differ. If you select worst pivot value, then the time complexity for quick sort will be order of n square. We will also understand why it happens. So as we are discussing pivot value, now what is pivot? Now for that, look, in merge sort, at the time of division process we were doing nothing, but at the time of merging process we were comparing values. Okay, divide करते वक्त हमने कुछ नहीं देखा था वहां पे, merge करते वक्त हमने values को compare किया. Now उससे opposite quick sort में हम क्या करेंगे, at the time of division process हम values को compare करेंगे, and at the time of merging process हम कुछ नहीं करेंगे. So इससे फायदा क्या हो जाएगा, look, in a merge sort आप जब merge कर रहे थे तभी values को compare करके temporary array में store किया.
दैट वी विल नॉट रिक्वायर हियर बिकॉज मर्ज करते वक्त हमें कोई प्रोसेस करनी नहीं होगी. So we will not require extra memory temporary array here. तो इस तरह से अगर हम देखें तो मर्ज सॉर्ट से क्विक सॉर्ट थोड़ा बेटर है. यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं एंड स्टिल एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n log n. देन हाउ इट वर्क्स. तो क्विक सॉर्ट में क्या होता है, व्हेन यू गो फॉर द डिवीजन प्रोसेस, आप दो पार्टीशन जब बना रहे हो उसी वक्त आप वैल्यूज को कंपेयर कर लोगे. तो ये बोल क्विक सॉर्ट इज सेइंग दैट यू partially sort your array when you divide it into partitions. जब आप दो पार्टीशन क्रिएट करते हो उसी वक्त आप दोनों पार्टीशन को पार्शियली सॉर्ट कर लो. Now partially sort ascending order में अगर डालना हो तो lesser value will be on the left side, greater value will be on the right side. We can say that will be the ascending order. तो पार्शियल सॉर्टिंग यही है कि छोटी वैल्यूज को लेफ्ट साइड रखो, बड़ी वैल्यूज को राइट साइड रखो. लेकिन when we say lesser value and larger value, then it's a comparative analysis. Less than something and greater than something. तो जो something है compared to something, वो जो something है वो हम pivot value बोलेंगे कि भाई pivot value से छोटी values को लेफ्ट साइड रखेंगे और बड़ी values को राइट साइड रखेंगे. So that's the pivot value. Now from where to get pivot value? Now we are going to select one pivot value from our data itself. तो जो आपके सामने जो array दिख रहा है, इस array में से ही आप कोई एक वैल्यू को pivot value select करो. So मान लो कि we are going to select middle value as a pivot value. जो middle value है उसको हमने pivot value मान लिया. तो अगर मैं 4 को पिवट वैल्यू मानता हूं, देन 4 से छोटी वैल्यूज को उसके लेफ्ट साइड रखूंगा और 4 से बड़ी वैल्यूज को उसकी राइट साइड रखूंगा. तो 4 जो है वो उसकी जगह पे पहुंच जाएगा. 4 विल टेक इट्स एक्चुअल प्लेस एंड उसके बाद उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ दिस पिवट सिलेक्शन प्रोसेस मे डिफर, सो इट डिपेंड्स ऑन यू. आप पहली वैल्यू को पिवट ले सकते हो, लास्ट वैल्यू को पिवट ले सकते हो, मिडिल वैल्यू को पिवट ले सकते हो. सो पिवट सिलेक्शन प्रोसेसेस there are multiple pivot selection processes, depends on your data what you should go for. बट जो पिवट वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपके दो पार्टीशन बनेंगे. पिवट पॉइंट से लेफ्ट साइड का एक पार्टीशन, पिवट पॉइंट से राइट साइड का दूसरा पार्टीशन. सो इस तरह से दो पार्टीशन बनेंगे. That means दोनों पार्टीशन हाफ हाफ है या छोटा बड़ा है, that depends on the pivot value. Okay. Now अभी जो हमने pivot value select की है, let's say 4. तो right now 4 is not at the actual place where it should be. 4 की जगह कोई और होगी. Now how can we decide it? तो 4 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं उसको लेफ्ट साइड रखो, बड़ी वैल्यूज को राइट साइड लेके जाओ. तो 4 को कहीं ना कहीं लेफ्ट या तो फिर राइट साइड हमें शिफ्ट तो करना ही होगा, राइट. अगर 4 से छोटी दो ही वैल्यू है यहाँ पे आपके पास, तो लेफ्ट साइड से दो वैल्यू, देन थर्ड प्लेस विल बी द एक्चुअल प्लेस फॉर दिस पिवट वैल्यू 4 और बाकी सारी बड़ी वैल्यूज होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि पिवट वैल्यू से छोटी कितनी वैल्यूज हैं और बड़ी कितनी वैल्यूज हैं. एंड देन वी कैन डिसाइड कि भाई 4 का एक्चुअल प्लेस कौन सा हो सकता है. So now we are going to compare all the values in our array with this pivot value, and when we are comparing we will also bring it to left and right side so that हमें बीच में कहीं पे ऐसी प्लेस मिलेगी जहां पे हम 4 को रख पाए. Now how do we do that process? So for that सबसे पहले हम 4 को बीच से हटा के कहीं साइड में ले लेंगे. So लेट्स से हमने 4 को लास्ट वैल्यू के साथ स्वैप कर दिया.
तो 4 अभी के लिए लास्ट में चला गया, सो वो बीच में कहीं पे हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो पिवट वैल्यू आपने जो भी सिलेक्ट करी है उसको एक साइड में ले लो। नाउ देन यू हैव अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ये सारी वैल्यूज जो है उसको आप 4 के साथ कंपेयर करोगे। Now what we want is, we want lesser values on the left side and greater values on the right side. तो left और right दोनों हमें चाहिए। तो let's have two pointers, index variables I and j। अब ये दोनों को हम pivot point मतलब pivot value के साथ कंपेयर करते जाएंगे। We will compare 7 and 4। Now I जो है वो छोटी वैल्यूज के लिए होना चाहिए। अगर I के पास पिवट से छोटी वैल्यू है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर I के पास 4 से बड़ी वैल्यू है then we say that we have a problem। So 7 is greater than 4, which means we have a problem at the place of I। ठीक है, उसको ऐसे रखो। Now go to J। अब J के पास बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। जब तक बड़ी वैल्यू है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now 6 is greater than 4, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम J माइनस माइनस J को उल्टा चलाएंगे। 8 greater than 4, ओके नो प्रॉब्लम, सो J माइनस माइनस। 3 greater than 4, नो। अब हमें J के पास भी एक प्रॉब्लम मिल गया। तो व्हाट इज द करंट स्टेटस? I और J दोनों को प्रॉब्लमेटिक वैल्यू मिली है। I के पास छोटी होनी चाहिए लेकिन बड़ी है, J के पास बड़ी होनी चाहिए लेकिन वहां पे छोटी है। मतलब दोनों को एक दूसरे का प्रॉब्लम दिख गया। सो I और J ये दोनों क्या करेंगे, उनकी वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ स्वैप कर लेंगे। 7 और 3 दोनों को स्वैप करो एंड देन I प्लस प्लस J माइनस माइनस। क्योंकि I J जब दोनों एक दूसरे की वैल्यू को स्वैप करेंगे तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। I के पास छोटी वैल्यू आ जाएगी, J के पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी। And then we will repeat this process। I should have a lesser value। 2 less than 4, correct, I plus plus। 9 less than 4, no, so stop here। Go to J। 5 greater than 4, yes, then J minus minus। 1 greater than 4, no, we found a problem। I J दोनों को प्रॉब्लमेटिक वैल्यू मिल गई, दोनों एक दूसरे के साथ स्वैप कर लेंगे। सो 9 और 1 ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। देन I प्लस प्लस एंड J माइनस माइनस। अब हमने एक कंपैरिजन प्रोसेस आगे से शुरू किया, दूसरा कंपैरिजन प्रोसेस पीछे से शुरू किया। अब ये दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, दैट मीन्स वी आर डन विथ ऑल द वैल्यूज। हमने सारी की सारी वैल्यूज कंपेयर करके देख ली। तो जब I J एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, देन वी विल स्टॉप दिस कंपैरिजन प्रोसेस। जब ये दोनों क्रॉस कर जाते हैं तो ये कंपैरिजन प्रोसेस को हम फिनिश कर देंगे। एंड नाउ अगर आप देखो तो I के लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज 4 से छोटी है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम I अप टू द एंड जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी बड़ी वैल्यूज हैं। तो हमने पार्शियली शॉर्ट कर लिया अपने एरे को। एंड वी नो कि भाई अब 4 की जगह कौन सी होनी चाहिए, तो हम 4 जो हमारा पिवट वैल्यू है, पिवट पॉइंट, उसको I के साथ स्वैप करेंगे। 9 and 4 we are going to swap। Now when we complete this much part, हम ये बोलेंगे कि 4 उसकी जगह पे पहुंच गया। And on the left side of 4 we have all the lesser values, and on the right side of 4 we have all the greater values। And this place of 4 actually divides your entire array into 2 virtual partitions। लेफ्ट साइड का एक पार्टीशन हुआ, राइट साइड का दूसरा पार्टीशन हुआ। So that's how we virtually divide our array। Now as you all know that virtually division, that means there is nothing to do for merging process।
मर्जिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करनी नहीं पड़ेगी। सो मर्ज सॉर्ट के अंदर हम मर्ज करते वक्त जो कंपैरिजन और सारा का सारा कॉपी का प्रोसेस करते थे वो यहाँ पे नहीं करना होगा। Now once you have this position of 4, you can say okay, lower bound से लेके 4 तक एक पार्टीशन, 4 से लेके अपर बाउंड तक का दूसरा पार्टीशन, जहां पे 4 आप इंक्लूड नहीं करोगे। अब लेफ्ट साइड अगर एक पार्टीशन मिल गया, then let us focus on the left part only and let's go for the same process. We will select middle value as a pivot value. अब pivot को हम राइट मोस्ट वैल्यू के साथ स्वैप करेंगे विद इन अ पार्टीशन। पिवोट को जैसे ही आपने साइड कर दिया, देन आई जे का लूप स्टार्ट करोगे। आई के पास छोटी वैल्यू होनी चाहिए, आई प्लस प्लस करते जाओ। जे के पास बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, जे माइनस माइनस करते जाओ। When you found problematic value with ij both, you swap i and j. अगर i j दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, then you stop. So I should have lesser value, 3 less than 2, no, we have a problem at I. Okay, go for j. J should have greater value, 1 greater than 2, no, we have a problem at j. अब i j दोनों को स्वैप करो, 3 और 1 को स्वैप करो। Now 3 1 स्वैप हो जाने के बाद i प्लस प्लस j माइनस माइनस, i j दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, then you stop the process and you swap ith value with pivot point. And when you complete this much task, आप ये बोलोगे कि एक वैल्यू जो पिवोट वैल्यू आपने सिलेक्ट की थी वो उसकी जगह पे पहुंच गई। अगर वो उसकी जगह पे है तो लेफ्ट साइड एक पार्टीशन, राइट साइड दूसरा पार्टीशन। अगेन गो फॉर द सेम रिपीटेटिव टास्क फॉर दैट पार्टीशन। अब 1 के लिए हम सभी सेम प्रोसेस करने जाएंगे, बट दिस इज द सिंगल वैल्यू, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। 2 के राइट साइड जाओगे, अगेन देयर इज अ सिंगल वैल्यू, कुछ करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। एंड व्हेन यू आर डन विद द लेफ्ट पार्ट, आप वहां से भी वापस आ जाओगे। सो दिस मच पार्ट इज सॉर्टेड नाउ, एंड देन यू गो फॉर द राइट साइड। 4 के राइट साइड आप जाके सेम प्रोसेस फिर से करोगे। So what is the process? We select a pivot value, middle value as a pivot value. Then हम pivot value को साइड कर देंगे, so उसको राइट मोस्ट वैल्यू के साथ स्वैप कर दो, and then you start loop of I and j. I should be less than pivot value, 5 less than 8, yes, so I plus plus, 7 less than 8, yes, then I plus plus, 9 less than 8, no, I की लूप वहां पे ब्रेक करो। Go for j. J should have a greater value. Now 6 greater than 8, no, तो यहाँ पे भी हम स्टॉप कर देंगे। We will swap I and j value, so 9 and 6, and then we will do I plus plus j minus minus. अब ये अगर ये दोनों अगर स्वैप एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, then we'll stop और पिवट पॉइंट को I के साथ स्वैप करेंगे। So this is the actual place of 8. अब 8 की लेफ्ट साइड आपको एक पार्टीशन मिलता है, 8 की राइट साइड आपको दूसरा पार्टीशन मिलता है। So let us focus on the process and try to write a pseudocode here. How should we write a pseudocode or algorithm for this entire process? So let's say we want to write a quick sort process where we have original array, lower bound and upper bound, so left and right. यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टेम्पररी एरे लेने की जरूरत नहीं है, फाइन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी सिलेक्ट अ पिवट वैल्यू एंड बेस्ड ऑन अ पिवट वैल्यू वी पार्शियली सॉर्ट आवर एरे। और जैसे ही पार्शियली सॉर्ट कर लेते हैं हम वो पिवट वैल्यू को उसकी जगह पे रख देते हैं। नाउ टू डू दिस एंटायर प्रोसेस, लेट अस राइट वन फंक्शन। हमने एक फंक्शन बना दिया, very quickly we are gonna see that function also.
लेट्स से टू डू दैट एंटायर प्रोसेस, एक पिवट वैल्यू सिलेक्ट करके पार्शियली सॉर्ट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करके पिवट को उसकी एक्चुअल प्लेस पे डाल दो। ये पूरा प्रोसेस हम ये पार्टीशन फंक्शन के अंदर करेंगे। तो पार्टीशन में हम ये ओरिजिनल एरे लेफ्ट राइट सब कुछ भेज देते हैं। नाउ व्हेन दिस फंक्शन कंप्लीट्स इट्स प्रोसेस, तो वो पिवट वैल्यू को उसकी जगह पे रख देगा और वो जो कोई भी प्लेस है, जो भी इंडेक्स वैल्यू है, वो रिटर्न करेगा। So we will have that position or the index value here in variable p. p में हमें वो pivot value का actual place मिल जाएगा। Now we know that left से लेके p तक का एक partition और p से लेके right तक का दूसरा partition है। Now p is not included, तो हमारे पास दो partition मिल गए अभी। We have from left to p minus 1 पहला पार्टीशन और p प्लस 1 से लेके राइट तक का दूसरा पार्टीशन। सो वी हैव दीज टू पार्टीशंस नाउ। अब ये दोनों पार्टीशन पे हमें सेम प्रोसेस फिर से अप्लाई करनी है। सो वी विल डू द रिकर्जन, विल कॉल द सेम प्रोसेस क्विक फंक्शन। सो लेफ्ट पार्टीशन के लिए कॉल करो, राइट पार्टीशन के लिए कॉल करो। अब ये रिकर्जन कब तक चलेगा? जब तक आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू है। सो व्हेन योर left is less than right, you are going to do this recursion. When left is equals to right, आपके पास सिंगल वैल्यू है और सिंगल वैल्यू को कुछ करने की जरूरत नहीं। Yeah? So this is the recursive process of quicksort. लेकिन अब हमें यहाँ पे फोकस करना है। The actual process will be here in the partition function. So let us have a look at the partition function now. Now when we call partition, we have original array, we have left position and right position. So lower bound and upper bound for that partition. सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या करना है? We want to have a pivot value, और कौन सी pivot लेते हैं हम? Middle value को pivot मानते हैं। So we'll calculate the pivot point, middle place, left plus right divide by 2. That's our pivot point. अब पिवट पॉइंट जहां पे पॉइंट कर रहा है वो हमारी पिवट वैल्यू हो जाएगी। सो एरे ऑफ पिवट पॉइंट विल बी योर पिवट वैल्यू। सो वी हैव आवर पिवट वैल्यू नाउ। अब सबसे पहला टास्क हमारा क्या रहता है? पिवट वैल्यू को साइड में लेके जाओ। सो राइट मोस्ट प्लेस के साथ हम ये पिवट वैल्यू को स्वैप करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्वैप पिवट पॉइंट एंड राइट, ये दोनों को स्वैप कर दो। तो आपकी पिवट वैल्यू कहां पे चली जाएगी? राइट मोस्ट प्लेस पे। तो ये जो पिवट पॉइंट आपने कैलकुलेट किया था मिडिल वैल्यू का, मिडिल पोजीशन का, वो अपडेट कर दोगे, बिकॉज नाउ योर पिवट वैल्यू इज एट राइट मोस्ट प्लेस। सो दैट्स व्हाई वी अपडेट इट। पिवट वैल्यू को बीच से लेके राइट में डाल दिया, तो पिवट पॉइंट को भी हम अपडेट कर देंगे। So ये pivot value right side पे चलेगी। Now we should start our comparison process with I and j. So हमें पहले I चाहिए, it should be on left place, j will be on the right place, but exact right पे तो आपकी pivot value है। So right minus 1 से आप start करोगे j. So this is the initialization of I and j. Now what we do is we compare ith value with the pivot value. एरे ऑफ आई एंड पिवट, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो जब तक ith वैल्यू पिवट से छोटी है तब तक आप i प्लस प्लस करते जाओ। सो इफ योर एरे ऑफ i इज लेस देन पिवट, विल डू द i प्लस प्लस एंड दिस विल बी रिपीटेटिव, सो व्हाइल लूप। अब ये i प्लस प्लस करते 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 कहां तक जाओगे? जब तक आपका पार्टीशन खत्म नहीं हो जाता। सो एट मोस्ट you can go for right minus 1. ये आपके पार्टीशन का राइट मोस्ट प्लेस है, वहां तक जा सकते हो। सो टिल दैट पॉइंट यू मे गो फॉर i प्लस प्लस। अब ये टर्मिनेट कब होगा? या तो आप राइट मोस्ट प्लेस पे पहुंच जाओ, या तो फिर ith वैल्यू पिवट से बड़ी मिल जाए, तो आप ये while लूप को स्टॉप करोगे। देन यू विल गो फॉर द कंपैरिजन ऑफ jth वैल्यू। अब jth वैल्यू पिवट से बड़ी होनी चाहिए।
then you don't have any problem, you'll do the minus minus, j minus minus. अब माइनस माइनस करते करते आप कहाँ तक जा सकते हो, या तो आप लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जा सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ दिस जीरो यू मे राइट लेफ्ट. अगर जीरो लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी के लिए, because the array will have the zero index value. So that's the loop of j, and we do j minus minus. अब ये दोनों लूप जब टर्मिनेट होंगी, ठीक है, ये दोनों लूप अगर टर्मिनेट होती हैं तो आपको मिलेगा i के पास बड़ी वैल्यू मिलेगी और j के पास छोटी वैल्यू मिलेगी, और इन दोनों को हमें स्वैप करना है. So next thing what we'll do is array of I और array of j को हम पहले स्वैप करेंगे, and then the postfix, so I plus plus and j minus minus. Now we are gonna do this only if we have I less than j. अगर I j से कम है तभी हम ये प्रोसेस करेंगे. अगर I j दोनों एक दूसरे को स्वैप कर मतलब क्रॉस कर चुके हैं तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है. Now this is one swap. एक स्वैप करने के बाद हम ये सेम प्रोसेस फिर से I और J का लूप फिर से चलाएंगे. So for that we'll have another while loop here. While your I is less than J, you will do this entire process. तो जब तक ये है आप I plus plus J minus minus करते जाओ, I J को स्वैप करो, फिर से I plus plus J minus minus I J को स्वैप करो, and so on. अब ये आउटर लूप जो है वो कब टर्मिनेट होगा? Our condition is I less than j. इसका मतलब अगर I equals to j हो जाता है then also you will stop this process, और अगर I greater than j हो जाता है तो भी हम ये while loop को terminate करेंगे. So once we complete this while loop, उसके बाद अगर I equals to j हो गया है तो ये while loop तो खत्म हो गया. तो वो जो करंट वैल्यू है I और j की वो पिवोट के साथ कंपेयर नहीं हुई, तो एक बार हम उसे कंपेयर करते हैं. इफ I इज इक्वल्स टू j, तो हमें वो ith वैल्यू को पिवोट के साथ कंपेयर करके एक बार देखना पड़ेगा. अगर वो ith वैल्यू पिवोट से छोटी है देन विल डू I प्लस प्लस, अदरवाइज वी विल नॉट डू एनीथिंग. एंड दिस कंप्लीट्स आवर कंपेरिजन प्रोसेस. सो I प्लस प्लस J माइनस माइनस करते गए और हमारा I ऐसी जगह पे पहुंच गया जिसके लेफ्ट साइड सारी वैल्यूज जो है वो पिवोट से छोटी है और राइट साइड सारी वैल्यूज पिवोट से बड़ी है. अब वापस आप अपने पिवोट वैल्यू को ith प्लेस पे लेके आओ. सो नाउ वी विल स्वैप ith वैल्यू विथ पिवोट वैल्यू. वी विल स्वैप इट, and whatever is your I, that's the place जहां पे आप अपने pivot value को रख रहे हो. So that is the place कि जहां से आपको लेफ्ट और राइट दो पार्टीशन मिलते हैं, तो वो I को आप रिटर्न कर दो. So when you return this ith value, तो वो रिटर्न होके P में आएगी. And now we can say okay, लेफ्ट से P minus 1 का एक पार्टीशन और P प्लस 1 से लेकर राइट तक का आपका दूसरा पार्टीशन मिल गया, और वो दोनों पार्टीशन जो आपको मिलते हैं उस पे आप रिकर्सिव प्रोसेस करते हो तो ये सेम प्रोसेस वापस चलेगा. सो दिस इज द सूडो कोड फॉर क्विक सॉर्ट प्रोसेस. कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट ये आपको थोड़ा छोटा लगेगा, बट इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन मर्ज सॉर्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, so let's go and complete the remaining task here. So अगर हम 5 7 6 ये वाले पार्टीशन पे फोकस करते हैं, if we focus on this partition, then सबसे पहले 7 को हम पिवोट मानेंगे. 7 को राइट मोस्ट प्लेस पे लेके जाओ, and then you start ij. I should have a lesser value, so 5 less than 7, okay. 6 less than 7, okay, but I plus plus नहीं होगा because I जो है वो राइट माइनस 1 पे पहुंच गया. सो I की लूप ब्रेक हो जाएगी. देन वी गो फॉर J. I और J दोनों इक्वल है तो वो लूप भी नहीं चलेगी. I J इक्वल है तो एक बार हम 6 को 7 के साथ कंपेयर करेंगे. 6 इज लेस देन 7 तो हम I प्लस प्लस पर नहीं करेंगे, राइट. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्वैप एट द एंड ऑल्सो. सॉरी, 6 इज लेस देन 7 तो एक बार I प्लस प्लस होगा,
let me show you that this one. If I is equals to j, तो हम ith वैल्यू को pivot वैल्यू से कंपेयर करेंगे. If I is less than pivot, then प्लस प्लस. तो वो जो एक बार प्लस प्लस करना है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. 6 is less than 7, तो एक बार I प्लस प्लस हो गया. And this 7 will be swapped at 7, and वो उसकी फाइनल प्लेस हो गई. Go to left partition. 5 is your pivot value. राइट मोस्ट वैल्यू पे लेके जाओ. I equals to j. 6 less than 5, नो स्वैप. 5 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, 5 के राइट में सिंगल वैल्यू. कम बैक. 8 के राइट में जाओ, सिंगल वैल्यू, कम बैक, एंड फाइनल. So that's the entire quicksort process. Now, if you want to discuss the time complexity, then in general, we say that we have a random data, and when we select a middle value as a pivot value, we assume that it is going to divide your array into almost equal parts. तो ये बाइनरी ट्री की तरह हो गया, और जैसे हमने आगे देखा था हर लेवल पे n कंपैरिजन, सो एवरेज केस विल बी n log n, एंड दैट विल बी द बेस्ट केस आल्सो, बिकॉज ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मिडिल वैल्यू हर बार मिडिल में ही रहेगी, तो आपका पूरा बाइनरी ट्री बनेगा. सो इवन बेस्ट केस विल बी n log n. अब वर्स्ट केस क्या हो सकता है? मान लो कि जो वैल्यू को आप पिवट वैल्यू सिलेक्ट करते हो, इट इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. हर बार आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिवट की तरह सिलेक्ट किया. अगर पिवट वैल्यू छोटी वैल्यू है हर बार, तो उसके लेफ्ट साइड तो कोई पार्टीशन मिलेगा नहीं, हर बार आपको राइट पार्टीशन ही मिलते जाएंगे. सो द सेम प्रॉब्लम वी वर हैविंग विद बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री, कोई एक साइड लंबा होता चला जाएगा, दूसरी साइड कुछ होगा ही नहीं, तो उसकी हाइट हो जाएगी n. ओके, इन अ वर्स्ट केस आपके ट्री की हाइट हो जाएगी n. हर एक लेवल पे n कंपैरिजन, सो n into n square. So that is the worst case time complexity for quicksort. Okay, so this is what the quicksort is, and this is how quicksort works. Fine, and that's it from my side. So I complete my content delivery part. Now what I suggest is you start implementing quicksort program. Let me navigate back to the pseudocode so that everyone will have it, and if you want to refer, you can refer this slide. So you go for the practical number 12, quicksort implementation, and once you are done with that, you also write the 15th program, binary search, which we have already covered in the lecture part. So that completes our entire syllabus, and that's it from my side now. So if, look, we all are here till 11:30. Write your program, do your task, and wherever you feel there is a difficulty, you can ask me. So go for it. I'm going to stop this recording now.